हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. Plaintiff is in regular second appeal against the judgments and decrees passed by the courts below in a suit for declaration and permanent injunction. Full stop. Para. Brief facts are that the plaintiff slash appellant filed a suit for declaration and permanent injunction wherein she challenged the registered sale deed dated 9/10/2002 executed by her in favor of her son Jatinder Singh in respect of house number 5B, Dashmesh Nagar, Tripuri, Saidan, Patiala. Full stop. The said sale deed was challenged on the basis of fraud and misrepresentation, and the same was claimed to be fraudulent and without consideration. Full stop. Permanent injunction was also sought, seeking to restrain the defendant from interfering in the possession of the plaintiff over the suit property. Full stop. Para. It was alleged that the plaintiffs had 2 sons and 2 daughters. Full stop. Her husband Baljinder Singh had died. Full stop. Defendant is elder son of the plaintiff. Full stop. Younger son of the plaintiff was living separately. Full stop. Daughter of the plaintiff is a divorcee and she was living with the plaintiff along with her daughter. Full stop. The suit property was purchased by husband of the plaintiff after taking loan, and thereafter the plaintiff and her husband got the house slash suit property constructed in the year 1987. Full stop. Husband of the plaintiff died on 13/5/2007. Full stop. Plaintiff and her younger son performed his last rites. Full stop. Plaintiff claimed herself to be in possession of the suit property. Full stop. She came to know about the registered sale deed and thereafter obtained certified copy of the same on 25/2009. Full stop. Plaintiff asserted that she never sold the house in question to the defendant, nor had received any such consideration. Full stop. Possession of the house was never delivered to the defendant. Full stop. Defendant had played fraud upon the plaintiff and managed to get the signature of the plaintiff on the sale deed. Full stop. The sale deed was never implemented in the revenue record. Full stop. The sale deed was shown in respect of a plot, whereas house was constructed in the year 1987. Full stop. The sale deed was claimed to be fake transaction altogether. Full stop. Para. Defendant contested the suit, thereby admitting the relationship between the parties. Full stop. He admitted that divorcee sister of the defendant is residing in the house along with the plaintiff. Full stop. Defendant asserted that he had raised the construction with his own funds. Full stop. Initially,
The house was constructed by Baljinder Singh, that is father of the defendant, full stop. Defendant had purchased the suit property for a consideration of rupees 2 lakhs, wide sale deed dated 9/10/2002, full stop. Plaintiff had appointed her husband as a special power of attorney on 9/10/2002 in order to get the mutation sanctioned in favor of the defendant, full stop. Mutation was sanctioned in favor of the defendant. Defendant used to take care of his ailing father, who had extended monetary help to his other son, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये हो गया है 95 के लगभग आसपास होगी, ठीक है, 500 वर्ड्स. चलिए इसमें कुछ नाम आए उनका डिस्कशन कर लिया जाए. जतिंदर हैं. जतिंदर को कैसे बनाइएगा, अबव द लाइन जे बनाइए और फिर टी की डबलिंग करके एन का हुक, ठीक है, और ई की वॉवल लगा दीजिएगा टी के आफ्टर में, ठीक है. जे टी की डबलिंग, एन का हुक, ई की वॉवल आफ्टर में, टी के आफ्टर में. जतिंदर हो गया. दशमेश. दशमेश के लिए अबव द लाइन डी बनाइए, सर्किल बनाइए, फिर एम निकाल कर उसमें सर्किल बना दीजिए और पेन की वॉवल आफ्टर में लगाइए एम के, ताकि दशमेश से दशमेश आपको समझ में आ जाएगा. ओके. नगर तो पूरा बनता है, अगर अकेले आए तो एन और गे आर अबव द लाइन, और अगर दशमेश के साथ आ रहा है तो केवल एन को डिसज्वाइन कर दीजिए, नगर हो जाएगा. त्रिपुरी. त्रिपुरी क्या बनेगा, थ्रो द लाइन टी आर, टी में आर का हुक, टी आर थ्रो द लाइन और उसी में पी आर, पी में आर का हुक और ई की वॉवल पी आर के आफ्टर में, ये त्रिपुरी हो जाएगा. सैदान. अबव द लाइन सर्किल डी और फिर एन का हुक, ठीक है, और बिफोर में फर्स्ट प्लेस में आई की वॉवल, सैदान, ठीक. पटियाला पूरा बनेगा, अबव द लाइन पी टी एल अपवर्ड और दैट की वॉवल, पटियाला हो गया. ओके. और कुछ आया है, और कोई वर्ड तो समझ में आ नहीं रहा है. तो चलिए ये हो गया आउटलाइन का डिस्कशन. अब आते हैं सब्सक्राइबर भैया के ऊपर, जिन्होंने आज अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं. अच्छा लगा, बहुत अच्छे कमेंट आए उनके. ऐसे भी लोग होने चाहिए जो आपको मतलब इस तरह से बात करके आपसे थोड़ा आपसे पूछे, जानकारी लें. ज़रूरत भाई जो बता रहा है, जो डिक्टेशन दे रहा है या कुछ बता रहा है, उसके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है. तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, आपने क्या उखाड़ लिया, या फिर कुछ भी ऐसे ही कहा होगा कि क्या कहते हैं एपीएस वगैरह ये सब क्यों नहीं निकाला आपने, रिपोर्टर बन जाइए, इतनी तगड़ी स्पीड से आप बोल रहे हैं नाम वाम के साथ. तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी डिक्टेशन ऊपर नीचे हो जाती है, वहाँ हम मानते हैं कि चलिए हम कभी ज़्यादा हो गए कभी कम हो गए. ये सारे डिक्टेटर्स के साथ होता है, जो भी डिक्टेशन कोचिंग वगैरह में देते हैं या यूट्यूब में देते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है. तो वही उतना हमारा भी हो गया होगा, चलो वो हम मानते हैं. लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम यही कहते हैं कि डिक्टेशन वर्स्ट कंडीशन में आप चलिए लिखिए, ठीक है, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में लिखिएगा तभी तो एग्ज़ाम में कंफर्टेबल जोन में आप अपने आप को पाइएगा. अगर बहुत प्यार से अगर आप घर पे लिखेंगे या बिना किसी दिक्कत के लिखेंगे, तो फिर एग्ज़ाम में अगर प्रॉब्लम वाला डिक्टेशन आ गया या गंदा डिक्टेशन आ गया, तो उसमें आप कैसे, उसमें तो घबरा जाएंगे ना. क्योंकि अगर मैटर छूटता है तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, पूरा मैटर गुड़ जाता है. तो ये चीज़ है. और रही बात की ग्रेड पे कह रहे थे कि शाबाश मेरे मिट्टी के शेर, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. भैया देखिए आईएएस के एग्ज़ाम में 150 रैंक वाला बंदा आईएएस बनता है, तो 1000 जिसकी रैंक है उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसने मेहनत कम की है. मेहनत दोनों ने बराबर की होगी, ज़्यादा ही की होगी 1000 रैंक वाले ने, लेकिन उसकी अप्रोच गलत थी, इसीलिए वो सक्सेस उसको नहीं मिली. ठीक है, 150 वाले की 150 रैंक आ गई, इनकी 1000 आ गई. तो आप उसको वो नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि यार तुम्हारी यही क्या कहते हैं, हमको तुमसे यही उम्मीद थी, तुम नहीं निकल पाओगे. आखिर वो भी पटवारी बन गया होगा या फिर कुछ ना कुछ तो बना ही होगा. तो ग्रेड पे किसी के ज्ञान को डिसाइड नहीं करती है. ठीक है, जो उन्होंने ये कहा था ना कि ग्रेड पे ऐसा है तो फिर वैसा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले हैं आप. तो देखिए ज्ञान तो किसी से भी मिल जाता है, चाहे वो कुत्ता हो या इंसान हो. ज्ञान होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है. और वैसे जो आपने ज्ञान हमको जो आप दे रहे थे, उस ज्ञान की हमको ज़रूरत है नहीं. वो ज्ञान आप ऐसे लोगों को दीजिए जो मतलब आपसे जो सहमत हो. हम आपसे सहमत नहीं है, ना कभी हो पाएंगे, लेकिन आप सब्सक्राइबर हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और करेंगे भी. ठीक है, और
रही बात एपीएस की, तो पिछले साल का 2018 का रिजल्ट निकाल के हमारा नाम देख लीजिएगा, आयुष पांडे नाम है, आपको उसमें नंबर पता चल जाएंगे क्या आए हैं। शॉर्ट हैंड पिछली बार का सबका ख़राब गया क्योंकि कॉपी ही चेक नहीं हुई अच्छे से, ठीक है। लोगों का तो पूरा पूरा एक पैसेज गायब कर दिया है जिसने आरटीआई करके कॉपी निकलवाई है। तो ये सब जो कमेंट है इस टाइप के अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। आदमी को खुद के अंदर देखना चाहिए ना कि भैया हम किसी, आप भले अच्छी स्पीड में लिख रहे हो, आपकी मिस्टेक कम हो, लेकिन अप्रोच तो आपकी गलत है, तो आप कहाँ जाइएगा। मार्केट में और भी लोग हैं, आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे सीख लो। कोई हम पकड़ के तो लेके आ नहीं रहे हैं कि नहीं हमने जो आउटलाइन बनाई है वैसे ही आप बनाइए, ऐसा तो है नहीं। हम हमेशा यही आउटलाइन बताने के बाद कहते हैं कि देखिए ऐसी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपकी इच्छा चाहे आप जैसे बनाओ, ठीक है। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आपको ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। शॉर्ट हैंड तो एक कला है ना, तो उसको हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है उसमें। और जितने भी लोग सब्सक्राइबर हैं या आप खुद सब्सक्राइबर भैया जो कमेंट कर रहे थे, कोचिंग में इतने लोग पढ़ते होंगे, तो लोगों को 7-7 साल वेस्ट हुआ लोगों का, इसलिए क्योंकि 3-3 4-4 साल तो उनको गाइडेंस ही नहीं मिला सही, इसलिए उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। क्योंकि हम भी उसी स्टेज से निकले हैं ना, बताने वाला कोई नहीं मिलता, आपको सबको पता होगा। सब ने अपने सीनियर से, टीचर से, जो नौकरी पा चुके हैं उनसे, जो अच्छी पोस्ट पे हैं उनसे, सबसे पूछा होगा भैया तैयारी कैसे करें, मिस्टेक ज़्यादा आ रही, मिस्टेक कम कैसे करें, ज़रा बताइए, अपना ज्ञान शेयर करिए। किसी ने बताया होगा? गारंटी है 95% लोग सिर्फ यही कहते हैं, करते रहो हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमको भी यही सुनने को मिला, ठीक है। इसलिए हमारे एग्ज़ाम भी ख़राब हुआ। हम पैदाइशी या जब से शॉर्ट हैंड शुरू किए तभी से अच्छा लिखने लगे या फिर ख़राब लिखने लगे, ऐसा नहीं है। ख़राब स्टार्टिंग में सब लोग ख़राब लिखते हैं, उसके बाद लोग अपनी अपनी स्टेज में पहुंचते हैं कि हाँ कौन कितना किस जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो दूसरों को गलत गाइडेंस ना मिले, जितने भी मुझसे जो भी मुझको जानते हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी हमसे जो क्वेश्चन करते हैं, उनको हम यही कोशिश करते हैं कि उनको सही चीज़ बताएं ताकि उनका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाले ना एकदम भरे पड़े हैं। आप करते रहो, आपको साल का पता नहीं चलेगा शॉर्ट हैंड में, उसको निकलना ही निकलना है। मैक्सिमम शॉर्ट हैंड सिर्फ 2 साल में नौकरी वाली है, ये चैलेंज करके हम कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रिपोर्टर, पीए, एपीएस, रिपोर्टर का तो हम सपना ही नहीं देखते हैं क्योंकि हमको 160 में लिखना ही नहीं है। पहले अपना गोल डिसाइड करिए, उसके बाद लिखिए ना, कुछ भी करिए। अंधा चुक्की जैसे ही जो भी फॉर्म आया हमने उसको भर दिया, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो लोग, मैक्सिमम लोग तो सही जगह पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जब 150 आता है तो 150 की तैयारी करते हैं, 120 आता है 120 की तैयारी करते हैं, 110 आता है उसकी, 80 आता है उसकी। 120 एक नॉर्मल और एक एवरेज स्पीड है जिसमें नौकरी आदमी ले सकता है 2 साल 2.5 साल के अंदर, ठीक है। उसी को हम सजेस्ट भी करते हैं क्योंकि 150 स्पीड वो एक अलग चीज़ है, वो एम्बिशियस बंदे के लिए, तो अच्छी बात है, वो करना चाहिए, उसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन किसी को किसी से टैली नहीं करना चाहिए ना कि आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। ठीक है, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा हमको, उसके लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, उसका जवाब भी हम देते रहेंगे, ठीक है। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। थैंक यू।